corridor for the public, and various states are actually participating in the cultural programs accompanying the public unveiling of the Mahakal corridor. Let me go across to my colleagues who are on the ground there. Mohit Bhatt, Govind are both joining us live from there. We also have Swami Vikramaditya to just explain to us the importance and the significance of what is happening right now. But I want to ask you first, Govind, जो ये अभी लोकार्पण किया गया है, अभी आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार मध्य प्रदेश की जनता तो कर ही रही थी, लेकिन देश को एक बड़ी सौगात मिली है जिस महाकाल मंदिर को लेकर देश दुनिया के लोगों की जो आस्था है वो अब खूबसूरती में रम चुका है और एक प्रोजेक्ट बड़े ही ग्रेसफुल वे में बनकर यहाँ तैयार है। अब इसमें क्या कुछ प्रोग्राम है पीएम नरेंद्र मोदी का, तो पीएम नरेंद्र मोदी के 3 मेजर मूव थे। पहला, उनको पूजा करनी थी, वो हो चुकी है। दूसरा, वो कॉरिडोर का भ्रमण रहे हैं, वहाँ जो भी कलाकृतियां बनाई गई हैं वो बड़ी खूबसूरती तरीके से दिखाने की, ब्रॉड बनाने की इस पूरे कार्यक्रम को कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार की। उसके खूबसूरती के साथ पूरा भ्रमण भी करेंगे जिसमें लगभग हो सकता है पीएम नरेंद्र मोदी को 1 घंटा लगे और उसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। तो ये 3 कार्यक्रम हैं। हालांकि समय सीमा इनके लिए पहले से पूर्व निर्धारित थी, वो एक्सटेंड करनी पड़ी है क्योंकि पूजा में भी वक्त ज्यादा लगा और यहाँ पर जो इनको इंस्पेक्शन करना है संभवतः उसमें भी वक्त ज्यादा लगेगा। सो दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर वाज द टाइम लिमिट व्हिच इज टू be extended now because everything is just taking time because it's so graceful. It's in fact the metamorphosis of Mahakal Lok. PM Narendra Modi has already completed the prayer in Garbhagriha by following the protocol of wearing the attire and all, and now he will be inspecting to what all the things have been decorated inside the corridor which has been named as Mahakal Lok, and after that he will be addressing the huge rally. But before that, you can see behind me the lighting is on, everything is looking absolutely graceful, and the movement of VVIP leaders also we can see, and around me a number of people who are just trying to get even a single glimpse of PM Narendra Modi, and behind me I would show you a number of people who are looking quite enthusiastic. They were just before chanting Har Har Mahadev and all. Yeah, so this is what the enthusiasm among those localite people who are here witnessing PM Narendra Modi's first glimpse they just had while PM Narendra Modi was moving from there and waving towards these people. So these are the localite people who are the residents of Ujjain. They just having this is a historical moment for them. So absolutely it's quite a graceful time for everyone else because now Mahakal corridor is all set to be unveiled by PM Narendra Modi. It's being so the inaugurated people around now. you as well, you know, now that it has been unveiled, वहाँ जो लोग हैं जो वहाँ पर सालों से रह रहे हैं इस शहर में, उनका क्या सोचना है महाकाल कॉरिडोर को लेकर? देखिए, यहाँ इनके लोगों से ही यहाँ से पूछ लेते हैं कि ये बताइए, पीएम नरेंद्र मोदी आज लोकार्पण होने जा रहा है, क्या कुछ बदल जाएगा? आप आसपास के लोग हैं यहाँ, ये पूरा ही बदल जाएगा। ये एक आस्था का बहुत बड़ा के लिए काम हो गया है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। ये अमिट लोकार्पण जो हुआ है अमिट रहेगा हमेशा, और मोदी जी ने सभी जगह विकास कराया है और सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार वही करा रहे हैं, और वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर की कृपा है और वो ही ऐसा काम करा सकते हैं, दूसरे किसी नेता में कोई दम नहीं है। So this is what we are just having the reaction of the local people. They're saying that PM Narendra Modi is alone go forward with the religious and he is definitely of idiosyncrasy to put the things in priority, and here we are witnessing that how Mahakal corridor is all set to be ready. Here will be unveiled and inaugurated by PM Narendra Modi. जो आपके साथ लोग थे वो कह रहे हैं कि जीर्णोद्धार अलग अलग जगह है जहां पर हिंदुओं की आस्था है, उनका काम
मोदी सरकार में किया जा रहा है, भले से ही वो बात बनारस की हो, भले से ही वो बात अब उज्जैन की हो. Let me also go across to Acharya Vikramaditya, who's joining us now. If we just put out pictures earlier, what we had seen of the shivling that was there, which the Prime Minister unveiled, entirely made of kalavas. Very interesting, Acharya Vikramaditya. तो कलावे से बने हुए शिवलिंग का कुछ खास महत्व है क्या महाकाल को लेकर? देखिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शिवलिंग भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए. जो कपड़े का बना हुआ शिवलिंग की बात आप कर रहे हैं, यानी सूत का बना हुआ शिवलिंग, उसका जिस प्रकार से सुंदर वहां जो व्यवस्था की गई है, दृश्य बनाया गया है, वो वास्तविक तौर पर सौंदर्य के दृष्टिकोण से है. आप भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ हर प्रकार की मनोकामना की सिद्धि के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करने की, मृतिका का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जिसको प्रकार बनाया जाता है, पत्थर का शिवलिंग, पारद का शिवलिंग, इस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करने के लिए शास्त्र में वर्णित किया गया है. आपने देखा होगा रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए जाते हैं. बहुत सारी इस देश के अंदर हमारे यहाँ संस्कृति अनेक अनेक ऋषि हुए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति में शास्त्रों के अंदर अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अनेक अनेक प्रकार के इस प्रकार के स्वरूपों का वर्णन किया है. जिस प्रकार से आप कपड़े का जो सूत के द्वारा निर्मित जो वाक्य कहा गया है, शास्त्र में कहा जाता है कि संसार के सुख के लिए, इस संसार में हर व्यक्ति को कपड़ा प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, बेसिक नेसेसिटीज प्राप्त हो, उसकी मनोकामना सिद्धि के लिए सुंदर दृश्य का निर्माण जिस प्रकार से किया गया है, वो बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है. मैंने तो शायद इससे पहले कभी इस बारे में कभी देखा नहीं इस प्रकार से, लेकिन जिस प्रकार से सुंदर वहां निर्माण किया गया है वो बहुत ही अद्भुत है. और इसके साथ साथ इस शिवलोक के अंतर्गत समस्त भारतीय संस्कृति की जितनी मंडल है, उन सब का निर्माण जो किया गया है, जिससे भारत के देश की जो संस्कृति है उसका विहंगम दृश्य लोगों को मन में समझ में आ सके. पूरा विश्व में भारत की संस्कृति के बारे में बड़ा चर्चित की जाती थी, और भारत में जो भी लोग भ्रमण के लिए आते थे वो भारत के अध्यात्म को देख के ही आते थे. लेकिन पिछले कुछ कालांतर में ऐसा हुआ कि हम अपने संस्कृति की प्रति, विकास के प्रति ध्यान ही नहीं दे पाए. लेकिन जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को जीर्णोद्धार करने के बाद सुंदर तरीके से जगह जगहों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, चाहे वो केदार हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो राम मंदिर हो, और अब जिस प्रकार से यहां पर उज्जैन का जीर्णोद्धार किया गया है, वास्तविक तौर पे स्तुति योग्य कार्य है. और वो बहुत ही श्रेय है जिस कार्य को 1947 में किया जाना चाहिए था जी. 1947 में ये कार्य हो जाना चाहिए था, भारतीय संस्कृति का आरंभ. क्योंकि जिस प्रकार से विध्वंस का काल 2000 करीब 1000 साल तक रहा, उसके बाद जब हम आजाद हुए तो अपनी संस्कृति को जीर्णोद्धार करने का हमें प्रयास किया जाना चाहिए था. लेकिन वो किया नहीं. क्या मुझे दिखाई देता है कि महाराज विक्रमादित्य के बाद अहिल्याबाई होलकर हुई, और उसके बाद आज मोदी जी ने जिस प्रकार से सुंदर कार्य भारतीय संस्कृति को बनाने का किया है, शायद इसकी उपमा कोई दूसरी मिलती नहीं है. आज से 300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने भारतीय संस्कृति को जिस प्रकार मुगल आक्रांताओं ने विध्वंस किया था, उनका जीर्णोद्धार कराया था. लेकिन उसमें भी जो रह गया था उसका कार्य आज मोदी जी ने जिस प्रकार से स्वप्न किया है, मुझे तो एक वाक्य समझ में आता है कि आज महायोगी ने जिस प्रकार से महाकर्म योगी ने इस प्रकार से महायोगी का कार्य सुंदर संपादित कर दिया गया है, और अपनी श्रद्धा की श्रद्धांजलि आज वहां उपस्थित करी है. बड़ा सुंदर लगता है जिस प्रकार से महाकाल का वो कितना सुंदर बना दिया गया है जी. अयोध्या, बनारस, अब उज्जैन, मन बड़ा बहुत ही आनंदित हो रहा है जी. जी बिल्कुल, और जल्द ही उम्मीद है कि वहां जाकर के इसका खुद से आप देख भी पाएंगे महाकाल कॉरिडोर. लेट मी ब्रिंग इन मोहित.